still you have doubts. Okay, so you can give your feedback accordingly that we have doubts still. So the training is not successful, isn't it? So you should give your feedback. Based on your feedback, we can improve. We can improve our lectures, and obviously we can improve the SDG also, right? So that is very important thing. Now, so everybody is aware with this disease. सर ने बताया, सुबह से जो भी बताया सब metabolic चल रहा है. So metabolic में M start होता है मधुमेह, डायबिटीज इज द फर्स्ट थिंग इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. इससे पहले बहुत सारी पैथोलॉजी हो जाती है. सो वी विल टॉक अबाउट, वी विल जस्ट have a definition of diabetes. So what is diabetes? So is the high level of blood sugar, is it diabetes, or is it different than diabetes mellitus, or what we call prameya in Ayurveda? So how many people are agree with this, that prameya is a diabetes mellitus? How many people sitting in this hall are agree that prameya is a diabetes mellitus? नहीं, ओनली वन आंसर. बाकी लोगों ने चाय नहीं पिया क्या? पिया ना सर, सबने पिया. सो हाउ मेनी पीपल आर एग्री दैट मधुमेह इज अ डायबिटीज मेलाइटिस? हाउ मेनी पीपल? नहीं, नहीं. ओके, सो नहीं. जो कुछ नहीं बोल रहे वो क्या है? जो हाँ भी नहीं कर रहे ना भी नहीं कर रहे. सर, डायबिटीज मेलाइटिस क्या डायबिटीज? इज इट प्रमेह और मधुमेह? It is different than prameha and madhumeha both. Correct. This is totally different than prameha and madhumeha, because prameha is a metabolic disorder. Prameha is an endocrinological disorder. So it's a series of so many metabolic disorders. If we said in sum up that where the metabolic disorder or endocrinological disorders are described in Ayurveda, it is in the chapter of prameha. Okay? So prameha is not diabetes mellitus. It must be very clear. Okay? So, but still we do the treatment based on the prameha. Whatever treatment is mentioned in prameha, we treat the patient accordingly. Because we have to correct the metabolism. That's why. We took the treatment from that chapter only. So, diabetes mellitus is a chronic disorder. We all know. It's not an acute disorder. ऐसा नहीं हुआ कि आज सही थे सुबह सुबह डायबिटीज हो गई. ऐसा नहीं हुआ ना. तो पहले से थी, बट बाई चांस चेक हो गई तो पता चल गया कि डायबिटीज है. सो इट्स ए क्रॉनिक डिसऑर्डर. सो द persistent hyperglycemia cause damage and dysfunction in various organs. So see, diabetes 2, that is it. There are two types of diabetes. Everybody is aware, type 1 and type 2. So type 2 is more common, 90 to 95%, and type 1 is less common because type 1 is genetic, right? It is insulin dependent, and type 2 is a non-insulin dependent. So this is an Ayurveda perspective. I have written prameha here. Am I correct or wrong? I have written prameha in the definition of diabetes mellitus. Is that correct? No, it's not correct. Why? Because अभी सब लोगों ने agree किया that prameha is not a diabetes, right? So prameha is what? Prameha is a metabolic disorder. So we don't have diabetes description in Ayurveda. So we have to go back to the metabolic disorder first. Then we will come to the diabetes mellitus. So prameha roga involves the visheshan of Tirdosh, as we know, and it has a visheshan of 6 dhatus also. Meda, Rakta, Shukra, Ambu, Vasa, Lasika, Majja, Rasa, Oj and Masi, 10. तो जिसके भी पास 10 चीजें होती है वो खतरनाक होता है. रावण के पास 10 सिर थे, बहुत ज्ञानी थे. ऐसे ही प्रमेय का एक चैप्टर अगर आप पढ़ लो ना, तो जितनी भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, जितनी भी एनसीडी आप सब ट्रीट कर सकते हो. इतना ज्ञानवान चैप्टर है वो, बट उतना ही फेटल है. लाइक रावण, अहंकार हो गया उसको, तो यहाँ पे जिसमें भी 10 चीजें आ गई वो खतरनाक है. तो 10 दुष्य है इसके. इसलिए दिस डिजीज इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बट इट कैन बी. सो 20 types of prameha, yani metabolic disorders, are described in Ayurveda, and the main feature is prabhut mutrata and avil mutrata. So see, जब पेशेंट आपके पास आता है तो कोई भी पेशेंट ये नहीं बताता कि उसको प्रबल मूत्रता या अविल मूत्रता होती है. पेशेंट आपके सामने रिपोर्ट रख देता है और ये बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज हो गई है, काइंडली मैनेज. क्या करना है मुझे बताइए. आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है? आयुर्वेद से पहला क्वेश्चन होता है, आयुर्वेद से ठीक हो जाएगी 100%. पहला क्वेश्चन,
ये एलोपैथ वालों से जाके नहीं पूछेगा, वो हमसे जरूर पूछेगा आके, नहीं 100% ठीक होगी। फिर हम बोलेंगे नहीं ठीक नहीं होगी, मैनेज होगी। अच्छा कितने दिन में मैनेज हो जाएगी? फिर हम बोलेंगे भाई दवाई तो खा, थोड़ा शुरू कर, हम बताएंगे कितने दिन लगेंगे। सो सी दीज चैलेंजेस वी फेस इन अवर प्रैक्टिस, हमारे ओपीडी में हम डे टू डे बेसिस पे हम फेस करते हैं। सो प्रबुद्ध मूत्रता इज एक्सेसिव यूरिनेशन, तो किसी को यूटीआई है तो भी हो सकता है, इजंट इट? किसी को आम वात है तो भी हो सकता है, आम वात के लक्षण में भी लिखा है प्रबुद्ध मूत्रता। किसी को आमद ज्वर है तो भी हो सकता है, तो सबको तो डायबिटीज नहीं है। देन वी हैव टू रूल आउट कि अगर कोई एक्सेसिव यूरिनेशन बता रहा है तो पहले हम सीधा ये नहीं बोलेंगे ब्लड शुगर फास्टिंग कर लो जाके, हम उसका हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री से वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। So this is Madhumeh and Shudrameh. Again I have written this. So Madhumeh and Shudrameh is described under the Vataj Prameh. Total 20 types, Vataj 4 है, उसमें एक Shudrameh बोला। Shudra is what? शौद्र में है। शौद्र is what? मधु, हनी। तो जिसमें यूरिन हनी जैसा हो वो मधुमेह, मधु जैसा आ जाए वो मधुमेह। Can anybody taste this? No, not at all, not possible. So what? How we can know the taste of urine? हाँ, पिपलिका अभिचरण बोला है ना, एक टर्म आई है हमारे क्लास 6 में। लेकिन आजकल तो लोग ओपन में नहीं जाते हैं, आजकल तो लोग अपने वॉशरूम में ही जाएंगे। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दिस। तो कैसे जानेंगे? रिसर्च के पर्पज से अभी एक ई टंग सॉफ्टवेयर है, वहाँ से हम देख सकते हैं। एंड सेकेंड, हम ये बोल सकते हैं कि जब आप यूरिन पास करने जाते हैं तो वो स्टेन तो नहीं करता है, राइट? अगर थिक है, ऑब्वियसली अगर उसमें ग्लूकोज है तो उसका कंसंट्रेशन भी थिक होगा, तो अगर थिक है तो वो थोड़ी देर रिटेन करेगा। सो वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन। देन दिस इज एसोसिएटेड विद पूर्व प्रोडर्मल सिम्टम्स इन मधुमेह लक्षण। सो व्हाट इज अवर रोल बीइंग अ आयुर्वेद फिजिशियन? हम दो चीजें, एक तो हमें डॉक्यूमेंट करना है, इसलिए हमें एसडीजी पढ़ाया जा रहा है। तो हम क्या डॉक्यूमेंट कर सकते हैं? हम डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं? नो। कैन वी मैनेज डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक एंटेरोपैथी? नो. We need allopathic integration over there, but we can manage this patient symptomatically. So can we document? Yes, of course we can document. We can document if the patient has diabetic nephropathy, we can document कि हमने add on जो treatment दिया उससे उसको किस symptom में relief मिला है. Of course we can document. But our role is primary to diagnose the pre-diabetes. That is very important. Diabetes नहीं खेलना है, because now we become the capital of diabetes. डायबिटीज से पहले पूर्व बताएं, और इतने सारे बताएं, प्लेंटी ऑफ पूर्व पर मेंशन आयुर्वेदा। कितने लोगों को याद होंगे? कितने लोग अपनी क्लिनिक में, अपने ओपीडी में चरक की बुक रखते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। सो द गुड रीडर कैन बी द गुड लीडर, सो द गुड प्रैक्टिशनर कैन बी द गुड रिसर्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास पेशेंट जब आता है तो पूर्व रूप में आता है, बट वी मिस द डायग्नोसिस because we never remember the पूर्व। So here is our rule, we must remember the पूर्व। अगर हमें पूर्व पता है डायबिटीज के, so we can diagnose the patient in pre-diabetic state. That is the greatest role what आयुष professionals can play। और एलोपैथ वालों को हमसे इतनी उम्मीद है ना, वो यही कहते हैं छोड़ दो, बाद में हम मैनेज कर लेंगे, पहले आप कर लो। अभी सर बोल रहे थे भाई प्रिवेंशन में होलिस्टिक है तो आयुर्वेद है, ऐसा नहीं है। हम डायबिटीज़ को भी मैनेज करेंगे, हम पूर्व रूप को भी मैनेज करेंगे, हम कॉम्प्लिकेशंस को भी मैनेज करेंगे, डायबिटिक फुट को, गैंग्रीन को हम लीच थेरेपी से मैनेज करते हैं ना। दे हैव ओनली एम्पुटेशन, बट वी हैव द मैनेजमेंट एंड वी डू, एंड देयर लॉट ऑफ लिटरेचर इज पब्लिश्ड। सो ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, द डॉक्यूमेंटेशन इज देयर, बट द लेक्यूनाइज हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो रिसर्च पेपर्स पढ़ते नहीं है। दैट इज अ इशू। हम प्रैक्टिस करें, वी आर सो बिजी इन डूइंग द प्रैक्टिस, इतने पेशेंट आते हैं दैट वी डोंट हैव इनफ टाइम टू गेट इट बैक टू द क्लासिक्स। कितने लोग हैं जो जाके वापस बुक उठा के पढ़ते हैं अगर कोई नया केस आपके पास आया? 1%। सो हाउ मेनी पीपल आर प्रेजेंट इन दिस हॉल? अगर उसमें से एक ही बंदा पढ़ रहा है तो कैसे हम इक्विवेलेंट होंगे? नो नो, वी कांट। सो देयर इज अ नीड टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट, राइट? सो मास्टर ट्रेनर वही बन सकता है जिसको कंप्लीट एंड इंटायर नॉलेज हो किसी सब्जेक्ट की। तो आप मास्टर ट्रेनर तभी हो सकते हैं जब आपको इस डिजीज के बारे में A to Z पता हो। कुछ भी आ जाएगा, आई विल मैनेज,
कॉम्प्लिकेशन है जी कि आई विल मैनेज। मैंने सिर्फ ये पढ़ा, मैंने इतना सुना कि इसमें हम स्थूल प्रमेय है तो शोधन करेंगे। पेशेंट को डायबिटिक एंटेरोपैथी है, क्या विरेचन दे दोगे? पहले उसको लूज मोशन हो रहे हैं, कैन वी गिव? नो, वी कैन नॉट गिव। सो आधा पढ़ा हमने कि स्थूल प्रमेय है तो विरेचन दे देंगे, राइट, शोधन कर देंगे, बट ये नहीं देखा कि ऑलरेडी वो कॉम्प्लिकेशन में आया है। तो जिसको ऑलरेडी लूज मोशन हो रहा है उसको विरेचन नहीं देंगे। विरेचन अयोग्य है ना, वो तो वहां लिखा है वो अयोग्य है। सो वी मस्ट हैव दिस टाइप ऑफ नॉलेज। सो इस एट क्यों हम इस पे बात कर रहे हैं, इस एट लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी ग्लोबली। व्हाट इज नंबर 1? ये तो 8th पे है। नंबर 1 पे क्या है मोर्टेलिटी के लिए? पार्डन सर? इस वन नंबर 3 tuberculosis is on number 5th. What is number 1 and 2? ये बहुत पीछे हैं, हम 8th की बात कर रहे हैं, बट 8 से पहले 7 हमें पता होना चाहिए, नहीं? सो हम ये बोल रहे हैं इससे 8 लीडिंग कॉज। सो 529 बिलियन केसेस, ये 2021 का ग्लोबल प्रिवलेंस रेट है, जैसे 6.1%। और अगर हम ये बोले ये यूएस डॉलर में लिखते हैं, बिकॉज हम तो कुछ करते नहीं ना, इंडियन सब डॉलर, अमेरिकन ही करते हैं सारे रिसर्च, तो वो बोल रहे हैं कि 996 बिलियन ग्लोबल एक्सपेंडिचर होता है एवरी ईयर टू मैनेज डायबिटीज। उसके बाद भी डायबिटीज को हम इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। वी कैन डू, इफ वी डिसाइड वी कैन डू। आयुष प्रोफेशनल्स कैन बेटर मैनेज दिस डिसऑर्डर and in a very effective way. We can prevent the complications too, but we have to be more knowledgeable, we have to be more aware, we have to be more concerned. That is a need, right? So then 80% disease burden in low and the middle income countries. So India is one of them or not? हम low middle income में आते हैं या अभी हम developed हो गए? No, still we comes under this. So projected to reach 1.31 billion cases by 2050, right? 2050 तक 1.31 बिलियन केसेस होंगे हमारे यहाँ। सो हम कुछ कर सकते हैं क्या? इस डाटा को रिवर्स कर सकते हैं? हम कम कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते, बट ये हाइपोथेटिकल प्रोजेक्टेड डाटा। इफ वी मैनेज द पेशेंट एट प्री डायबिटिक स्टेज, ऑफ कोर्स वी कैन मैनेज, डायबिटीज में जाएंगे ही नहीं। दैट इज there is our rule, right? So we'll talk about the India. So India में देखो आप 4.9% प्रिवलेंस है, तो फिर क्यों इतना मरे जा रहे हैं हम भाई? पर उससे ज़्यादा वो ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, 15 to 49 years. That is very cautious. We have to be very cautious. टीनेज में 15 साल में डायबिटीज आ रही है। टेक्स्ट बोलती है, आप डेविडसन उठा लो, हैरिसन उठा लो, कोई भी टेक्स्ट उठा लो, वहाँ लिखा है 40 के बाद डायबिटीज़ होगी। हमारे यहाँ तो 15 पे आ रहा है। सो व्हाट वी कैन डू, 15 से 40 तक जाते जाते पेशेंट को अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो कॉम्प्लिकेशन होगा तो व्हाट विल हैपन, द डेथ विल, राइट? तो हमारा यंग जनरेशन तो खत्म हो जाएगा कंट्री का। सो वी मस्ट थिंक अबाउट दिस। हम आयुष प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बट उससे ज़्यादा हम इंडियन सिटीजन हैं, तो अपने देश के बारे में भी सोचना है, अपने मरीज के बारे में सोचना है, तो देश के बारे में भी सोचना है। सो वी हैव टू लुक ऑन दिस दैट 15 to 40 ईयर्स पे हमें काम करना है। सो ये डाटा हम 15 में डायबिटीज़ ना हो, वी कैन प्ले अ ग्रेट रोल। हाउ, आई विल टेल यू। देन दिस इज अ ICMR सर्वे दैट 26.6% जो है डिस्ग्लाइसेमिक है। व्हाट डज इट मीन डिस्ग्लाइसेमिक? हाइपरग्लाइसेमिक होता है, हाइपोग्लाइसेमिक होता है। लो हो गया तो हाइपो हो गया, हाई हो गया तो हाइपर हो गया, हाइपर हो गया तो डायबिटीज हो गया। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ dearranged level of glucose. Means sometime it will come 130, sometime it will come 96, sometime it will come 200, sometime it will come 120. So this is a gray area where we can play a role. हमें इस पे ध्यान देना है। डिस्ग्लाइसीमिया 26.6% पॉपुलेशन कम नहीं होती है, रियली इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन। अगर आप 26.6% पॉपुलेशन को एड्रेस करोगे और आप जहाँ हो जिस स्टेट में हो, अगर उसका 1% पॉपुलेशन को भी एड्रेस करोगे, सो यू कैन हैव अ ग्रेट रोल, राइट? आप अपने देश के लिए कुछ बड़ा कर सकते हो। सो
So we are seeing that rising trend across both urban and the rural population. Rural में क्यों डायबिटीज ज़्यादा हो रहा है? प्रमेय में एक श्लोक है ना, आस्य सुखम सुपन सुखम लाइफ स्टाइल। तो जब आपके पास पेशेंट आए ना तो डराना है उसको, भाई आस्य सुखम सुपन सुखम, आराम से नहीं बैठना। सब लोग अभी अपना खेत में किसान लोग भी लेबर रख के काम करा रहे, खुद नहीं जाते, खुद नहीं खेती कर रहे। उनको भी अभी इतनी लग्जरी आ गई, इतना पैसा आ गया कि वो भी घर पे बैठ के टीवी देखना पसंद करते हैं, राइट? जिम में चले जाएंगे बट खेत में नहीं जाएंगे। दैट इज अ प्रॉब्लम। सो आस्य सुखम सुपन सुखम ग्राम्य औदक अनुप्रस प्यांसी, मतलब जो ग्राम्य आहार खा रहा है। ग्राम्य आहार मतलब जो गांव में होता है वो क्या? नहीं, व्हाट इज ग्राम्य आहार? सर तो फिर तो अच्छा है ना, फाइबर खाएंगे तो डायबिटीज नहीं होगी। ग्राम्य आहार जो भी जंक फूड है ना, दैट इज डिफाइंड एज अ ग्राम्य आहार, है ना? आप अनपान विधि एक चैप्टर है चरक में, आप उसमें पढ़िए। दे हैव द ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज ग्राम्य। ग्राम्य इज नॉट अ गुड, ग्राम्य इज नॉट अ गांव का आहार। ग्राम्य इज समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो जो ग्राम्य आहार खा रहा है, जो आनूप देश में रहने वाले पशु पक्षियों का मांस खा रहा है, मांस रस ले रहा है, वो लोग दे आर प्रोन टू। और उसके बाद सेकेंड लाइन में क्या बोला है? किसको आता है ये श्लोक? नव अन्न पानम गुड विकृतम, है ना? नया अन्न, है ना, न्यूली हार्वेस्टेड, वो नहीं खाना है। तो पहले होता था लोगों के पास बड़ा बड़ा स्टोरेज होता था विलेजेस में। सिटी में तो कोई नहीं रखता, सब आशीर्वाद आटा खाते हैं, इजंट इट? गांव में आज भी लोग रखते हैं, 1 साल 2 साल हार्वेस्ट करते हैं और उसके बाद उसको खाते हैं और नए वाले को फिर स्टोर करते हैं। तो जो न्यूली हार्वेस्टेड है उसको नहीं खाना है। और गुड़ विकृतम मतलब गुड़ के जितने भी विकार हैं, है ना? वो मैम ने भी बताया, जब स्थोल्य बता रहे थे कि इक्षु के विकार नहीं खाने। गुड़ कहाँ से बनता है? इक्षु से। तो देख लो, डायबिटीज एंड ओबेसिटी लिंक हो गई ना, निदान तो सेम हो गया। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो वो नहीं खाना है। अगर खाएंगे तो क्या होगा? आगे लिखा है प्रमेय हो जाएगा, प्रमेय हो जाएगा। और प्रमेय होगा तो क्या? मेनली क्यों होगा? क्योंकि कफ की दुष्टि हो जाएगी। सो इट कॉज प्रमेय। तो ये याद रखना है। तो सबको थोड़ा थोड़ा डराना है। आस्य सुखम सुपन सुखम नहीं बैठना। ऑफिस में 8 घंटे बैठते हो तो हर 1 घंटे बाद जाके 10 मिनट का 5 मिनट का वॉक करके आना है, राइट? अदरवाइज कॉमन योगा प्रोटोकॉल है, छः सिर्फ पोस्चर्स हैं, 3 मिनट लगते हैं, उसको फॉलो करना है 2 टाइम्स, दैट इज ओके, राइट? सो मुझे जल्दी जल्दी बोला है। अच्छा, ये रिस्क फैक्टर्स है। रिस्क फैक्टर मैंने बताया। एज क्यों? क्योंकि 15 साल में अभी प्रिवलेंस मिल रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट? इथनिसिटी वो हमें पता है कि किस पॉपुलेशन में जाना है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ लिखा है ये असाध्य है या याप्य है, हमारा शास्त्र कहता है। बट ऑफकोर्स वी कैन मैनेज, वी हैव रसायना थेरेपी, वहाँ हम ज़रूर कुछ कर सकते हैं, वहाँ हमारा ही रोल है। एलोपैथ हैज़ नो ट्रीटमेंट फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स, बट वी हैव द मैनेजमेंट। देन मॉडिफाई दिस लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी मैनेज कर लो, अनहेल्दी डाइट, स्ट्रेस, पॉल्यूशन। एंड देयर आर सो मेनी केसेस जो न्यूली डायग्नोज केस होते हैं। वंस वी आस्क अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, हमारे पास 99% स्ट्रेस एक फैक्टर मिलता है। इफ वी टेक द हिस्ट्री इन अ डिटेल, फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलेगी बट वो स्ट्रेस फैक्टर मिलेगा। मेरा बच्चे बाहर चले गए, बाहर सेटल हो गए, है ना, डायबिटीज़ हो गई। घर में कुछ झगड़ा है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, डायबिटीज़ हो गई। सो हेयर वी कैन प्ले अ रोल। हम काउंसलिंग कर सकते हैं, हम पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं, वैद्य रसायन दे सकते हैं। सो हेयर इज़ अवर रोल। सो सी एवरीबडी ऑब्जर्व दिस पोस्ट कोविड ट्रेंड जबरदस्त स्पीड से बढ़ा है। उतना तो सोना भी महंगा नहीं हुआ जितना कोविड के बाद डायबिटीज़ हो गया, इजंट इट? उससे ज़्यादा है ना, गोल्ड की प्राइस से ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ा ना। क्यों बढ़ा? क्योंकि थोक थोक के हमने स्टेरॉइड खिलाए, खूब हाई डोज में मेड्रोल लिया, 64 mg खा लो, इतना mg खा लो। सो सी अभी तो हमें ही मैनेज करना है। द पेशेंट आर कमिंग बैक टू अस ओनली, द आयुर्वेद प्रोफेशनल्स, सो वी हैव टू मैनेज। सो 14.4% increase in diabetes among the hospitalized cases, right? So this is a classification based on the text. सहज बोला है और अपत्य निमित्तज बोला है, मीन्स दैट इज ड्यू टू द लाइफ स्टाइल और डाइट्री उसकी वजह से है, जो दोष की वजह से है वो, और जो एक सहज है जो जेनेटिक है। देन नेक्स्ट इज
इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम बेस्ड ऑन द पैथोजेनेसिस बताए कि उसको कैसे, एक आवरणजन्य होता है और एक धातु क्षयजन्य। ये क्यों जानना है? आवरणजन्य है तो चिकित्सा अलग करेंगे और धातु क्षयजन्य है तो चिकित्सा अलग करेंगे। आवरणजन्य तो कफ की चिकित्सा पहले करेंगे, बेशक वो कृष्ण में ही हो, रिमेंबर इट। और अगर धातु क्षयजन्य तो वात की ही चिकित्सा करेंगे प्रधानता, राइट, बेशक वो स्थूल में ही हो, बाकी चीज़ों को कंसिडर करेंगे बट वात की चिकित्सा करेंगे, इसलिए हमें चाहिए। देन दीज आर द फ्यू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो निदान बताए हैं। वो अभी जो हमने बताया आस्य सुखम सुपन सुखम, वो तो विहार है, और सेकंड लाइन में है कि नया अन्न खाओगे, ये सब करोगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। देन संप्राप्ति से इम्प्रॉपर डाइट एंड लाइफ स्टाइल, अगर आप वो सब फॉलो करोगे तो व्हाट विल हैपन, स्निग्धता बढ़ेगी, ये गुण की वृद्धि होगी, उससे क्या होगा, कफ की दृष्टि होगी, मेनली त्रिदोष है बट कफ प्रधान है, कफ की दृष्टि होगी एंड अल्टीमेटली वो सारे दोषों को बस्ती की तरफ ले जाके इट विल कॉज द प्रमेय। ये आयुर्वेदिक संप्राप्ति है। सो अभी हाउ टू डिसाइड द ट्रीटमेंट विल कम, थोड़ा हम फास्ट करेंगे। हाँ, कॉमन सिम्टम्स पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफिजिया, फटीग, ये पेशेंट आपके पास लेके आएगा अलॉन्ग विद द रिपोर्ट। सो डायबिटीज मेलाइटिस को डायग्नोज करने के दो तरीके, एक पेशेंट रिपोर्ट के साथ है, एक आप प्रमेय के पूर्व रूप और लक्षण के बेस पे कर सकते हो। अगर आपको डाउट है तो इमीडिएटली उसका ब्लड शुगर करना है, राइट। और ये कोई भी कर सकता है, आयुर्वेदा हेल्थ सेंटर पे हो सकता है, बीएससी पे हो सकता है, बिकॉज ये फैसिलिटी सबके पास होती है। HbA1c नहीं हो सकता, आई कैन अंडरस्टैंड, तो उसको रेफर कर दो। अगर आपको लग रहा है कि ब्लड शुगर बहुत हाई आ रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू रेफर द पेशेंट या उसको एडवाइस कर दो। देन हमें रिकरेंट इन्फेक्शंस और इन सबको भी, ये पेशेंट इनके साथ भी आता है कभी कभी, ब्लड शुगर नहीं पता है उसको बट बोलता है मुझे कुछ धुंधला दिख रहा है, एंड दिस इज अ प्रेजेंटेशन। बहुत यंग बच्चे आके ऐसा बोलते हैं कि ब्लड विजन है, तो हम सीधा बोलते हैं कि हो सकता है मायोपिक हो, जाके विजन चेक करा लो। बट जब उसको विजन चेक करने के लिए भेज रहे तो उसका हिस्ट्री लेना है डिटेल में, आस्क अबाउट द फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, राइट, फर्स्ट उस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम मिस कर देते हैं। सो द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज़ की, क्या क्या हो सकती है, मैक्रोवेस्कुलर में कॉर्नरी हार्ट डिजीज हो सकती है, राइट, स्ट्रोक हो सकता है, नेफ्रोपैथी हो सकती है, रेटिनोपैथी हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है। न्यूरोपैथी इज कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन, चीटियाँ जैसी चल रही है हाथ पैर में या सुन रहते हैं, ये प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट आता है, राइट। देन वी हैव टू मेक द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डायबिटिक न्यूरोपैथी है या हाइपरटेंसिव न्यूरोपैथी है या सिंपल B12 की डिफिशियंसी है। सो अभी हम एक अच्छा चिकित्सक बनने के लिए हमें शास्त्र का नॉलेज होना है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें हिस्ट्री बहुत डिटेल लेनी है। अगर हम हिस्ट्री डिटेल लेते हैं तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत ईजिली हो जाता है, बहुत ईजिली हो जाता है, उसके लिए आपको किसी को रेफर नहीं करना पड़ता है केस, राइट। सो एमर्जिंग जो कॉम्प्लिकेशंस है ये वाइस वर्सा है, NFLD, NASH, सर ने अभी डिटेल में उसके बारे में बताया। सो ये जो बताया हमने, बिकॉज डायबिटीज इज ऑल्सो मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइनल डिसऑर्डर। सो अभी जब आप मैनेजमेंट देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ जो चिकित्सा शास्त्र में बताई है वो सारी औषधियाँ यकृत पे काम करती है। सो अगर किसी को NFLD स्टेज 2 डायग्नोज हो रहा है या स्टेज 3 डायग्नोज हो रहा है, उस पेशेंट को अवेयर करना है कि आप डायबिटिक हो सकते हैं भविष्य में, इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। सो दिस इज द क्लिनिकल प्रोटोकॉल, कंफर्म करना है फास्टिंग ब्लड शुगर के साथ PPS HbA1c, राइट। आप सबसे पहले फास्टिंग ब्लड शुगर कर सकते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस और कोमॉर्बिडिटीज के लिए स्क्रीन आउट करना है पेशेंट को, पूरा डिटेल हिस्ट्री लेना है, हिस्ट्री लेने के साथ एग्जामिन करना है। समटाइम पेशेंट नहीं बताता, पता चलता है उसका टो ब्लैक हो रहा है, उसको गैंग्रीन डेवलप हो रहा है, पेशेंट आपको नहीं बताएगा बिकॉज पेशेंट इज नॉट अवेयर कि वो कितना सीरियस है, बट बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ फिजिशियन, आप तो जानते हैं। सो इसलिए पेशेंट को थ्रू आउट, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को सिंपल शुगर देख के ट्रीटमेंट नहीं लिखना है, उसको डिटेल हिस्ट्री के साथ डिटेल एग्जामिन करना है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम जो कोमॉर्बिडिटीज़ है और जो हमारे कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग पकड़ते हैं, पेशेंट नहीं बताता, राइट। पेशेंट आपके पास आता है जॉइंट पेन लेके, अर्थराइटिस के लिए, आप उसको पूछते हो 10 बार शुगर तो नहीं है, तब जाके वो एक बार मुंडी हिला के बोलता है हाँ शुगर है। सी, and this is a practice, this is a very common practice, कोई पेशेंट आके बैठते से ही नहीं बोलता डॉक्टर साहब मैं डायबिटिक हूँ। सो ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरी पेशेंट, आपको डायबिटीज तो नहीं है, राइट।
और जो उसके पूर्ण रूप है उसको लिस्ट आउट करके अपने टेबल पे रख लो एंड जस्ट रीड आउट वंस इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट एंड यू सी, आप स्क्रीनिंग कर रहे हो डायबिटीज़ की, यू विल सी कि आउट ऑफ दो 16 2 3 4 तो मिल ही जाते हैं. So here is your rule. So you can educate the patient and you can manage at that stage only. So this is what sir told. डॉक्टर सीमा ने भी जो बताया कि हमारा रोल क्या है, हमें इंटीग्रेशन में काम करना है. मतलब हमारे पास पेशेंट आ रहा है टाइप 2 में, लेकिन वो मेटफॉर्मिन भी खा रहा है. पहला क्वेश्चन, क्या मैं मेटफॉर्मिन के साथ आपकी दवाई खा सकता हूँ? कितने लोग हाँ बोलने वाले हैं यहाँ? एक ही बोले सर, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं. सब लोग बोलेंगे तो मेटफॉर्मिन के साथ यस और नो सर? हाँ खा सकते हैं. ओके, तो मेटफॉर्मिन के साथ आयुर्वेदिक ये वाले एजेंट जो ब्लड शुगर को कम करे खा सकता है पेशेंट. एग्री? एग्री. कितने लोग ये सोचते हैं कि ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है? आपने नहीं सोचा? आधे घंटे का गैप रखते. सर से अपने वो क्वेश्चन पूछा बट स्मार्टली उन्होंने डिनाई कर दिया बिकॉज ही हैज़ नो आंसर. राइट? तो ये आंसर किससे मिलेगा? हाँ खत्म करते. ये आंसर किससे मिलेगा? जब हम ड्रग इंटरेक्शन स्टडी करेंगे. सो काउंसिल इज डूइंग द ड्रग इंटरेक्शन स्टडीज़. जितने भी एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं मॉडर्न मेडिसिन में, उन सब के साथ जितने भी हमारे एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट हैं आयुर्वेद में, उन सब का हम ड्रग इंटरेक्शन कर रहे हैं एंड इट विल बी पब्लिश सून. राइट? तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं. और मेथी हैज़ ए ग्रेटेस्ट ड्रग इंटरेक्शन. जो पेशेंट मेथी खा रहा है वो मेटफॉर्मिन खाएगा तो उसका शुगर कभी कम नहीं होगा. 4 स्टडीज पब्लिश है इस पे. सो आस्क द पेशेंट, मेथी तो नहीं खाते हो, मेथी का पानी तो नहीं पीते हो, रिमेंबर इट. हाँ, सो दिस इज टेक होम मैसेज फॉर दिस. आप उसको डाइट और ये सब बता सकते हो. आई विल जस्ट स्किप बिकॉज आपकी गाइडलाइन में सब लिखा है. सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशंस बताया आपको ये करना है, यूरिन ग्लूकोज करना है. अगर वो बोल रहा है यूरिन में स्मेल आ रहा है, थिक आ रहा है, तो हम रूल आउट करेंगे. देन एडवांस स्टेजेस में डायबिटिक हमें नेफ्रोपैथी रूल आउट करनी है, क्रेटिनिन और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे. रेटिनोपैथी के लिए फंडोस्कोपी करेंगे. सो दीज आर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. हम इन्हीं से कर लेते हैं, वेरी सिंपल. और हमें तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है. ये देख लो, हमारे लिए तो इतना अच्छा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताया है शास्त्र में. हम डायबिटीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं. प्रभुत मूत्रता है, अविल मूत्रता है ना, ये सारे सिम्टम्स देख के. एक्सेसिव थर्स्ट है, सो बेस्ड ऑन द प्रमेय पूर्व वी कैन डायग्नोज. और जहाँ डाउट है, जहाँ हमें 3 से ज़्यादा प्रेजेंट मिल रहे हैं, सेंड द पेशेंट फॉर ब्लड शुगर फास्टिंग. सो वी कैन स्क्रीन द पेशेंट अकॉर्डिंगली. ये रेड फ्लैग साइंस है. सिवियर इन्फेक्शन है, किसी को निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, रेफर द पेशेंट. डोंट टेक रिस्क इफ द ब्लड शुगर इज नॉट मैनेज. राइट? बिकॉज कोविड में भी वही लोग मरे जिनका ब्लड शुगर बहुत हाई था, इजंट इट? सो वायरस नीड्स ग्लूकोज ओनली. राइट? सो बैक्टीरिया नीड्स ग्लूकोज ओनली. सो सी, अगर आप मैनेज कर पा रहे हो शुगर तो ठीक है, रेफर द पेशेंट. देन एडवांस मेलिग्नेंसी से रेफर द पेशेंट. विजुअल इम्पेयरमेंट है, रेटिनोपैथी हो गई, आप भेज दो नेत्र चिकित्सा स्पेशलिस्ट के पास. राइट? आस्क देम टू टेक द ओपिनियन. बेशक आप आयुर्वेद दो, कोई बुराई नहीं है, बट ओपिनियन ज़रूर लेना है. हाँ, डोंट टेक रिस्क. हर किसी की लाइफ अपनी जैसी समझना है. एवरीबडी हैज़ द सेम लाइफ एज वी हैव, सो वी मस्ट रिस्पेक्ट द पेशेंट. सो दिस इज अगेन इन द सेम. सो दीज आर द गाइडलाइन हाउ वी कैन डू द प्रिवेंशन. वी कैन रिड्यूस द रिस्क फैक्टर. ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो अभी मैम ने बताया ना, कैसे कर सकते हैं हम आहार विहार से. देन टारगेट pre-diabetic. This is very important. That's why I am highlighting this. These are the guidelines of ICMR कि आपको pre-diabetic को टारगेट करना है. डायबिटीज़ तो हो गई, अब उसको तो मैनेज ही कर सकते हो, बट डायबिटीज़ नहीं हो उसके लिए आपको ये इस पर फोकस करना है. दैट इज इम्पॉर्टेंट. एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन इन डायग्नोज पेशेंट. राइट? एंड टर्शरी, लिमिट डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन पेशेंट विद द कॉम्प्लिकेशन. राइट? अगर किसी को डायबिटिक फुट हुआ है तो सर्जन को ओपिनियन लेने ज़रूर भेजना. बेशक आप लीच थेरेपी करो, देख दो ओपिनियन. सो दीज आर द प्रिंसिपल. निदान पर सबको पता है, गाइडलाइन में लिखा है, आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना. अपथ्य डिटेल में दिया है, बहुत अच्छे से इस गाइडलाइंस में बताया है, तो एक बार उसको भी गो थ्रू हो जाना कि क्या क्या है, कि क्या क्या हमें नहीं लेना है स्वीट्स में, ये सब. और इन सबसे इम्पॉर्टेंट जो सर ने बोला कि वो पेशेंट से उनका डाइट का रिकॉल लेते हैं. 24 आवर डाइटरी रिकॉल एक सिस्टम होता है.
सो इट्स बेटर व्हाट आई डू इन माय प्रैक्टिस, मैं एक पेशेंट को 5 रुपए का एक कॉपी देती हूँ जहाँ मुझे लगता है इसका शुगर मेंटेन नहीं हो रहा। आस्क हिम और हर, जो भी खाते हो ईमानदारी से बिना छुपाए मुझसे चुपचाप लिख के ले आओ, तो वो लिख के ले आता है। फिर वहाँ पता चलता है उसने बहुत सारे मीठे बिस्किट खाए, अराउंड 20, एक कप चाय के साथ। भैया कैसे शुगर मैनेज होगा? पार्ले जी के बिस्किट खाए, मैडम शुगर नहीं ले रहा हूँ। सो यहाँ पकड़ते हो आप पेशेंट को। सो मेक इट इन अ प्रैक्टिस, राइट? उनको डाइटरी रिकॉल ज़रूर लेना है। आप डाइटरी रिकॉल से यू कैन मैनेज द पेशेंट वेरी इफेक्टिवली। दिस इज द डाइटरी रिकमेंडेशन, डिटेल यहाँ मेंशन है। आई विल जस्ट स्किप। Apathy is also mentioned in the detail, what is not good for the patient. And pathy is also mentioned, what is good. Regular exercise, walk करना है, minimum 30 minutes in a day. कहीं भी घूमो, छत पे घूमो, घर में घूमो, गली में घूमो, पार्क में घूमो, 30 मिनट घूमो। बार बार पूछना है, जितनी बार पेशेंट आ रहा है उतनी बार पूछना है कितना घूम रहे हो, ठीक है? वो ज़रूरी है। एक साथ 6 किलोमीटर नहीं चलो, 30 मिनट रोज चलो। एडुकेट स्लीप होना चाहिए, यू जस्ट एजुकेट द पेशेंट अबाउट दिस। Then line of treatment is accordingly we can manage as mentioned in the samhita. So these are the few formulations which are mentioned here in this in the diabetes chapter. तो the primary is निशा अमल की। ये जो ड्रग्स यहाँ मेंशन है ना, इन पे बहुत रिसर्च भी हो चुका है, ये एविडेंस बेस्ड है, और जो क्लासिक्स में मेंशन है वही इसमें लिखी गई है। एंड दिस गाइडलाइन इज दिस इज ड्राफ्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ क्लिनिशियंस, राइट? तो ऐसे टेक्स्ट से नहीं लिखा है, based on their clinical experience also they have mentioned all these drugs. So you have to decide कि निशा अमल की कहाँ देना है। ब्लड शुगर 340 है तो खाली निशा अमल की नहीं चलेगा, वी हैव टू ऐड समथिंग। आरोग्यवर्धिनी डालना पड़ेगा, चंद प्रभावती डालना पड़ेगा, राइट? कषाय देना पड़ेगा, फल तरकारी दे दो। सो वी हैव टू मैनेज, सो दैट इज एज पर अवर नॉलेज। तो ये एक ब्रॉड गाइडलाइन दिया। शोधन चिकित्सा इज ऑल्सो मेंशन लाइकवाइज। सो लेवल 1 PSC पे आप क्या कर सकते हो? दिस इज अगेन द रिपीटिशन, अभी मैंने जो बताया। देन ओपीडी लेवल इनिशियल एंड लेट एडवोकेसी में आप निशा अमल की चूर्ण एंड असनादी को आज सबकी जगह सबके पास नहीं होगा। असन इज विजिसाइड वो सबके पास नहीं होगा, बट निशा अमल की वो भी नहीं है तो आंवले का चूर्ण और हल्दी दे दो उसको, दैट इज़ वेरी सिंपल, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट लाइन। अकॉर्डिंगली यू कैन टेक कथक खदिरादि कषाय चंद प्रभावटी आरोग्यवर्धिनी वटी एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट यू कैन डिसाइड। सो ओपीडी लेवल पे आप इन मेडिसिन से मैनेज कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो ये ऐड ऑन कर दो, सारा नहीं करना है, रिमेंबर इट। वट एवर मेंशन इज हियर इज जस्ट अ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप इनमें से यू चूज एनी वन, यू मेक अ प्रिस्क्रिप्शन, राइट? सो डोंट राइट, सब नहीं लिखना है। भेदा विस्तर उपद्रव है, अगर कॉम्प्लिकेशन आ चुका है तो हम ये सब दे सकते हैं, राइट? देन CSC पे अगेन आप डायग्नोज करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस को रूल आउट करेंगे, अकॉर्डिंगली यू मैनेज। दिस इज अगेन आप क्या क्या कर सकते हो रूल आउट करने के लिए। आपके पास तो डॉपलर नहीं है, उनके पास है NCVB, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट करना है, तो है ना? अगर कोई पेशेंट आपके पास न्यूरोपैथी का है तो आप नहीं कर सकते रेफर द पेशेंट। सो दिस इज अगेन दिस इज अ समरी। सो दीज आर द रेफरेंसेस यू कैन just go through and read out. So thank you all. If you have any question, you can ask. Thank you.